First of all, learning objectives. Learning objective. Upon completion of this topic, students should be able to know about hospital pharmacy, functions of hospital pharmacy, organization structure, location, layout of hospital pharmacy, and staff requirement and responsibility of functions of hospital pharmacists to implement decision of the pharmacy and therapeutic committee to coordinate and cooperate with the other departments of a hospital and to plan organization and implement pharmacy policies procedures in keeping with established policies of the hospitals. These are the learning objectives of hospital pharmacy and its organization. Next one, learning outcomes. Learning outcomes of this topic on successful completion. On successful completion of unit, students will be able to like definition of hospital pharmacy, organization structure of hospital pharmacy, functions of hospital pharmacy, responsibilities and functions of hospital pharmacist, and organization structure of hospital pharmacy. Next one, location and layout of hospital pharmacy and personal and floor space requirement. These are the learning outcomes of this topic. First of all, definition. Definition of hospital pharmacy. Department of hospital pharmacy which deals with procurement, storage, compounding, dispensing, manufacturing, testing, packaging, and distribution of drug. These are the functions of responsibility of hospital pharmacist and hospital pharmacy, like deals with procurement, storage of drugs, compounding of drugs, dispensing, manufacturing of drugs, testing of drugs, packaging and distributions of drugs. These are the Department of Pharmacy functions, and it is also concerned with education and research in pharmaceutical services, in which hospital pharmacy concerned with education and research in pharmaceutical services, and hospital pharmacy is controlled by a professionally component and a qualified pharmacist. Do you know qualified pharmacist mean? Anyone? Qualified pharmacist. What is called qualified pharmacist? Anyone? Yes or no? एनीवन कोई बताएगा क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का मतलब क्या होता है? A mean of qualified pharmacist. Yes or no? Reply me. Qualified pharmacist mean a person qualified by graduate degree in a pharmacy and licensed by a state pharmacy council for a prepared, dispense, selling and control content drugs. The registered pharmacist. क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मतलब यहाँ पे ये है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है कहाँ पे? स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. एक क्वालिफाइड पर्सन का रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्टर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल या स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन है, इट्स मींस हु इज क्वालिफाइड फार्मासिस्ट. नेक्स्ट वन, functions of hospital pharmacy. Functions of hospital pharmacy like dispensing, manufacturing, purchasing and inventory control, statistics and report, teaching, research, control. These are the functions of hospital pharmacy, in which dispensing like outdoor patients, dispensing of drugs to the outpatients, inpatients, and medical, surgical, and laboratory supplies, ward or floor stock management, alcohol. These are the dispensing functions, and manufacturing like bulk, large volume parenterals,
small volume parenterals. These are the manufacturing in hospital pharmacy. These are the functions of hospital pharmacy. Next one, functions of hospital pharmacy. Provide specification for the purchase of drug, chemical, biological. Provide specification for the purchase of drugs, chemicals, biologicals. Specifications means a detailed descriptions of the design and material used for the making something like drugs, chemical, biologicals. These are the provide specification. And proper storing of drugs, manufacturing and distribution of medicaments such as transfusion fluids, parenteral products, tablet, capsule, ointment, and stock mixtures. There are the functions of hospital pharmacy: dispensing and sterilizing parenteral preparations, which are manufactured in hospital, and dispensing of drugs as per the prescription of medical staff of the hospital, and filling and labeling of all drug containers from which medicines are to be administered, and medicaments of storage, which includes purchase of drugs, proper storage conditions and maintain of records in which hospital pharmacy. Many types of managements like proper storage conditions, maintenance of records. अगर हम लोग हॉस्पिटल के अंदर कोई भी परचेजिंग करते हैं तो उनका रिकॉर्ड हम लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता है, लाइक स्टोरेज कंडीशन को भी हम लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता है, एंड रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस, जो भी हम लोग ड्रग सेल कर रहे हैं उसका जो भी रिकॉर्ड्स है वो हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे. एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर. हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हम लोग ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर को क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे एंड उसको मेंटेन करके रखेंगे. प्रोवाइडिंग कोऑपरेशन एंड टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम्स. एंड हॉस्पिटल फार्मेसी क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी टीचिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम्स को. एंड डिस्कार्डिंग द एक्सपायर्ड ड्रग्स एंड कंटेनर्स वर्न एंड मिसिंग लेबल्स. अगर कोई भी मेडिसिन एक्सपायर्ड हो जाती है तो उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे और उसके ऊपर लेबलिंग करेंगे, मिसिंग लेबल्स, जो हम लोगों को की एक्सपायर्ड ड्रग्स का लेबलिंग करेंगे. दीज आर दी फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. एंड लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. Located in hospital premises so that patient and staff can easily approach it. हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो हम लोग, हॉस्पिटल फार्मेसी की लोकेशन क्या होती है कि हॉस्पिटल के अंदर ही फार्मेसी होनी चाहिए, एंड फॉर द परमिसेस दैट पेशेंट एंड स्टाफ कैन इजीली अप्रोच, जिससे कि पेशेंट्स एंड स्टाफ क्या इजीली मेडिसिन को अप्रोच कर सके. एंड इन multi-storied buildings of hospitals. In multi-storied building of a hospital, the pharmacy should be preferably located on ground floor, especially the dispensing unit. अगर multi-storied buildings, अगर multi buildings वाले जो hospitals होते हैं उनके अंदर हम लोगों को जो फार्मेसी के लिए जो फ्लोर रिक्वायर्ड रहता है वो हम लोग प्रीफर करते हैं ग्राउंड फ्लोर को, स्पेशली दी डिस्पेंसिंग यूनिट. जो हम लोगों की डिस्पेंसिंग यूनिट होती है वो हम लोग कहाँ पे लोकेट करते हैं, ग्राउंड फ्लोर के अंदर. इट शुड बी लेड इन सच ए वे दैट देयर इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मैन एंड मटेरियल्स, जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम लोगों का मैन एंड मटेरियल का जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो इजीली होता रहे. लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. अगर हम लोगों को हॉस्पिटली फार्मेसी का लेआउट डिजाइन करना है तो उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज को डिजाइन करना होगा, लाइक उसके अंदर असेप्टिक एरिया भी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन भी होना चाहिए, रॉ मटेरियल सेक्शन भी होना चाहिए,
स्टोर्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट सेक्शन भी होना चाहिए, पासेस, अगर कोई भी पेशेंट्स या स्टाफ के लिए पासिंग एरिया भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन भी होना चाहिए, डिस्पेंसिंग एरिया भी होना चाहिए एंड ओपन स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दी पेशेंट्स एंड कस्टमर्स. Aseptic area. Aseptic area means is a premise in a clean area designed, constructed, survived and used with a intervention to prevent the microbial contamination of the product. Aseptic area वो एरिया होता है जहाँ पे हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट रख रहे हैं तो वो किसी भी माइक्रोबियल, फिजिकल या केमिकल कंटामिनेशन नहीं हो, माइक्रोबियल कंटामिनेशन उन प्रोडक्ट्स के अंदर, आइटम्स के अंदर ना हो. एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, in which manufacturing section is the production of goods through the use of labor, machine, tools. मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के अंदर हम लोगों को किस किस का यूज होता है, लेबर का, मशीन का, जो टूल्स होते हैं उस एरिया के अंदर हम लोग रखेंगे. रॉ मटेरियल, raw material are substance primarily used in the production or manufacturing of goods. रॉ मटेरियल्स का हम लोग क्या यूज करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के अंदर. एंड स्टोरेज एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट. फिनिश्ड प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द मेडिसिनल प्रोडक्ट that has undergoes all stages of productions including packaging in the final container are called finished products. And passes area required for the staff and administrative section, dispensing and open space required in the layout of hospital pharmacy. These are the layout of hospital pharmacy. Next one, pharmacy services. Pharmacy services in hospital pharmacy. क्या क्या सर्विसेज होती है एक फार्मेसी के अंदर, like types of pharmacy, physical planning, staffing, organizing functions, identifying storage distribution of. ये क्या है, हम लोगों की फार्मेसी सर्विसेज है. हम लोगों के हॉस्पिटल के अंदर जो सर्विसेज होती है फार्मेसी के अंदर वो होती है लाइक टाइप ऑफ फार्मेसी, फिजिकल प्लानिंग, स्टाफिंग, फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फार्मेसीज. टाइप ऑफ फार्मेसीज के अंदर हम लोगों को कौन कौन सी टाइप्स की फार्मेसीज होती है, लाइक कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, एम्बुलेटरी फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, कंसल्टेंट फार्मेसी, वेटरनरी फार्मेसी. These are the types of pharmacy. Next one, physical planning, in which physical planning its broadest sense refers to a set of action aimed of improving the physical, social and economic welfare of a place and its develop. तो यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्लानिंग के अंदर क्या करेंगे कि जो फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर है उनको इम्प्रूव करेंगे. नेक्स्ट वन, स्टाफिंग. स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट वर्कर with appropriate qualification or experience and recruiting them the fill job position or roles. यहाँ पे स्टाफिंग से मतलब जो एक फार्मासिस्ट का हम लोग अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो वो उसकी क्वालिफिकेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जब भी हम उसको क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे. नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी. Organizing is the establishment of effective authority relationship among selected works person and workplace in order for the group of work together effectively. And functions and identity storage distributions. Identity storage distributions means the drug which are supplied to ward and stored in drug cupboards to provide a uniform supply of drugs to patients. Identity storage distribution means हम लोगों की जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं, वो प्रॉपर जगह पे स्टोरेज होना चाहिए. बिकॉज अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको इजीली हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड कर सके. These are the pharmacy services.
Types of pharmacy. First of all, community pharmacy. Community pharmacy mean any place under the direct supervision of a pharmacist, where the practice of pharmacy occurs or where prescription order are compounded and dispensed other than a hospital pharmacy and limited service pharmacy. बेसिकली कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हम लोगों का जो कस्टमर्स या पेशेंट्स का जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वो किससे होता है, फार्मासिस्ट से. एंड हॉस्पिटल फार्मेसी. हॉस्पिटल फार्मेसी इज द ऑर्गेनाइजेशन. हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल टू मैनेज द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, प्रिवेंशन, पैकेजिंग, कंपाउंडिंग, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन इन दी हॉस्पिटल. एक हॉस्पिटल फार्मेसी के क्या क्या रोल होते हैं, ड्रग्स का प्रोक्योरमेंट करना, स्टोरेज करना, प्रिवेंशन करना, पैकेजिंग करना, कंपाउंडिंग, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन. दीज आर दी functions of hospital pharmacist and hospital pharmacy. Next one, physical planning for layout. अगर हम लोगों को हॉस्पिटल फार्मेसी बनानी है तो उसके लिए जो फिजिकल प्लानिंग करनी है, एक लेआउट बनाने के लिए कि एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड होगा. अगर हम लोगों को एक हॉस्पिटल फार्मेसी बनानी है तो उसके लिए हम लोगों को लोकेशन रिक्वायर्ड होगी, एप्रोप्रिएट लोकेशन रिक्वायर्ड होगी, एप्रोप्रिएट साइज रिक्वायर्ड होगी, फिनिशिंग लाइटिंग रिक्वायर्ड होगी, प्रिस्क्रिप्शन एरिया रिक्वायर्ड होगा एंड स्टोरेज एरिया रिक्वायर्ड होगा. दीज आर दी रिक्वायर्ड एरिया फॉर दी फिजिकल प्लानिंग ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी लेआउट के लिए. नेक्स्ट वन, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स. स्टोरेज ऑफ ड्रग्स लाइक जनरल ड्रग्स को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, नार्कोटिक ड्रग्स को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे हम लोग जो कोल्ड स्टोरेज के अकॉर्डिंग जो ड्रग्स आती है उनको हम कहाँ करेंगे, इन्फ्लामेबल ड्रग्स को कहाँ पे स्टोर करेंगे. जनरल ड्रग्स आर स्टोरेज कंडीशन. जनरल ड्रग्स की जो एक स्टोरेज कंडीशन होती है वो हम लोगों की होती है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. जनरल ड्रग्स को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं, 15 to 25 डिग्री सेल्सियस. एंड नार्कोटिक ड्रग्स, कोल्ड स्टोरेज ड्रग्स को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोग स्टोर करेंगे. एंड इन्फ्लामेबल ड्रग्स को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, नॉन दैट हीट, एयर, लाइट एंड मॉइस्चर डैमेज द मेडिसिन स्टोर्ड योर मेडिकेशन इन कूल एंड ड्राई प्लेस. जो इन्फ्लामेबल ड्रग्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हैं, वो क्या होती है कि हम लोगों के मॉइस्चर से सेंसिटिव होती है, तो हम लोग उनको एयर, लाइट एंड ड्राई एंड कूल प्लेस पे स्टोर करेंगे. नेक्स्ट वन, स्टोरेज ऑफ रेफ्रिजरेटेड ड्रग्स आइटम्स. स्टोरेज ऑफ रेफ्रिजरेटेड ड्रग्स आइटम्स लाइक refrigerated medications must be stored at appropriate temperature according to the following. अगर कोई भी रेफ्रिजरेटेड मेडिसिन है जो कि फ्रिज के अंदर रखना रिक्वायर्ड होता है तो उनको हम लोग किस टेम्परेचर पे रखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रूम टेम्परेचर. जो ड्रग्स रूम टेम्परेचर पे रखी जाती है उनका टेम्परेचर होता है बिटवीन 15 to 25 डिग्री सेल्सियस. एंड कूल प्लेस मीन्स between 8 to 15 डिग्री सेल्सियस मींस एयर कंडीशनिंग, जो कि हम लोगों का एसी का टेम्परेचर होता है एयर कंडीशनिंग. लाइक इस कूल प्लेस के ऊपर हम लोग कौन सी मेडिसिन को रखते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स, विटामिन प्रिपरेशंस एंड एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस जो होती है उनको हम लोग स्टोर करते हैं कूल प्लेस पे बिटवीन 8 to 15 डिग्री सेल्सियस. एंड नेक्स्ट वन, रेफ्रिजरेटर मींस बिटवीन कोल्ड प्लेस जो होता है हम लोगों का बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. और 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, लाइक वैक्सीन, इंसुलिन, हेपेरिन. दीज प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम लोगों इनको स्टोर करेंगे.
freezer. Between freezer means between -10 to -20 degree Celsius. Between -10 to 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं मींस फ्रीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं. लाइक ओरल पोलियो वैक्सीन विच इज केप्ट बिलो -20 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है उनको फ्रीजर के अंदर स्टोर करते हैं बिटवीन -10 to 25 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट वन, जर्नल ड्रग्स. व्हाट आर जर्नल ड्रग्स? क्या होती है? ड्रग्स टू बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन कैबिनेट. जर्नल ड्रग्स को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर. ड्रग्स टू बी जर्नल ड्रग्स आर टू बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन कैबिनेट के अंदर हम लोग उनको अल्फाबेटिकली स्टोर करेंगे. और एज पर यूज एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव एक्सेट्रा. तो अगर हम लोगों की एंटीबायोटिक कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं उनको हम लोग अलग से कैबिन के अंदर स्टोर कर सकते हैं. एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर यूज होती है तो उनको हम लोग पर्टिकुलर कैबिनेट में स्टोर कर सकते हैं. बिन कार्ड शोइंग स्टॉक पोजीशंस. और हम लोगों की जो अल्फाबेटिकली ड्रग्स का ऑर्डर होता है उस स्टॉक के अंदर हम लोग उनको स्टोर करेंगे. शॉर्ट एक्सपायरी टू बी प्लेस इन फ्रंट एंड लॉन्ग एक्सपायरी एट दी बैक. ये हम लोगों की एक फार्मेसी के कंडीशंस होती है जिनके अंदर हम लोगों को ड्रग्स को स्टोर करना होता है. लाइक अगर कोई भी ड्रग्स है जिसकी शॉर्ट एक्सपायरी है, नियर एक्सपायरी है, मींस उनको हम लोग प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ दी फार्मेसी. जो हम लोगों की रैक्स हैं उनके अंदर हम लोग फ्रंट के अंदर शॉर्ट एक्सपायरी ड्रग्स को प्लेस करेंगे एंड लॉन्ग एक्सपायरी एट दी बैक. एंड जिनकी लंबाई एक्सपायरी है, लॉन्ग टाइम के बाद में वो एक्सपायर होंगी तो उनको हम लोग बैक के अंदर क्या करेंगे? प्लेस करेंगे. फीफो. फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फीफो एक मेथड है जो कि हम लोग बेसिकली फार्मेसी के अंदर यूज करते हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कोई भी मेडिसिन अगर हम लोगों ने फर्स्ट में परचेज की है तो उसको हम लोग फर्स्ट में सेल करेंगे. जो मेडिसिन पहले हम लोगों की फार्मेसी में आई है उसको पहले हम लोग सेल करेंगे. मेथड टू बी फॉलोड. यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसीज के अंदर हम लोग इस मेथड को फॉलो करते हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मीन्स फर्स्ट मेडिसिन कम एंड फर्स्ट मेडिसिन आउट. The drugs to be used before date of expiry. कोई भी ड्रग है तो उसको हम लोग उसके एक्सपायरी से पहले यूज करेंगे. और ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल्स. अगर उसकी नियर एक्सपायरी है तो उसको हम लोग अदर हॉस्पिटल्स या अदर फार्मेसीज के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जिससे कि वो बिफोर एक्सपायरी डेट उसका यूज हो सके. एक्सपायरी ड्रग्स टू बी डिस्पोज्ड एज पर रूल्स. एक्सपायरी ड्रग्स को हम लोग क्या करेंगे? डिस्पोज्ड कर देंगे एज पर दी ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स. जो एक्सपायरी ड्रग्स होती है उसको हम लोग डिस्पोज्ड कर देंगे. नेक्स्ट वन, कोल्ड स्टोरेज ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, liver extract should be stored in cold temperature between 8 to 15 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे जो हम लोगों की विटामिन्स होती हैं, एंटीबायोटिक प्रिपरेशंस, लिवर एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशंस को हम लोग स्टोर करेंगे कोल्ड रूम टेम्परेचर पे. एंड द रूम टू बी एयर कंडीशनर विथ टेम्परेचर कंट्रोल फैसिलिटी. यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज कंडीशन के अंदर हम लोगों को जो टेम्परेचर कंट्रोल जो फैसिलिटीज होती है, जो थर्मामीटर्स होते हैं हम लोगों को जिससे हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, वो हम लोगों के कोल्ड स्टोरेज कंडीशन के अंदर होने चाहिए. ड्रग्स लाइक वैक्सीन, सीरा, हार्मोन्स एक्सेट्रा टू बी स्टोर्ड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. वैक्सीन हो गए, सीरा, हार्मोन्स हो गए. वैक्सीन, सीरा, हार्मोन्स जितनी भी प्रिपरेशंस होती है हम लोगों की
उनको हम लोग स्टोर करेंगे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है हम लोगों का कोल्ड टेम्परेचर इन डीप फ्रीजर और वॉल्क इन कूलर। एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग थ्रू डायल थर्मोमीटर एंड टेम्परेचर चार्टिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थर्मोमीटर से जो टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे, वो हम लोग थर्मामीटर लगा के रखेंगे एंड जो टेम्परेचर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, उसकी चार्टिंग करेंगे, एक रिकॉर्ड चार्ट बना के उसके अंदर फॉलो करेंगे कि हम लोगों ने ये टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। नेक्स्ट वन, नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स, there should be separate special arrangements for narcotic drugs like morphine, pethidine, barbiturates। एनीवन कोई बताएगा मॉर्फिन जो होती है हम लोगों की कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स है? एनीवन, मॉर्फिन हम लोगों की कौन सी कैटेगरी में आती है? आप लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, एनीवन कोई बताएगा मॉर्फिन्स हम लोगों के कौन सी कैटेगरी में आती है? मॉर्फिन्स, पैथेडीन्स एंड बार्बिटूरेट्स कौन सी कैटेगरी में आती है? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। एनीवन कोई रिप्लाई करेगा? सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। ओके, मॉर्फिन्स, पैथेडीन्स ये हम लोगों की ऑपिएट्स जो ड्रग्स होती हैं, ऑपिएट्स ड्रग्स जिनके अंदर हम लोगों के आती है, एंड बार्बिटूरेट्स जो कि हम लोगों की सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के अंदर यूज होती है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स टू बी मेंटेन्ड, और यहाँ पे हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स का क्या करेंगे, प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर किसी भी पेशेंट को नार्कोटिक ड्रग्स का हम लोग डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे, पेशेंट का नाम, मेडिसिन का नाम एंड डॉक्टर जो कि प्रिस्क्राइब किया है नार्कोटिक ड्रग्स। ऑलवेज टू बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, और हमेशा नार्कोटिक ड्रग्स को हम लोग क्या करेंगे, लॉक के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट वन, inflammable items। inflammable items, separate enclosure to be made for inflammable like spirit, gases and chemicals। spirit, gases and chemicals को हम लोग सेपरेटली क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। adequate ventilation and fire fighting arrangements, यहाँ पे हम लोग जो रिक्वायर्ड रहता है इन्फ्लामेबल आइटम्स के अकॉर्डिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, कि प्रॉपरली जो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एंड फाइटिंग अरेंजमेंट्स, अगर बाई चांस अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, तो उस कंडीशन में हम लोगों को प्रॉपरली अरेंजमेंट करना होगा फाइटिंग अगेंस्ट फायर के लिए। एक्सुगेट्स, फैंस एंड स्काई स्क्रैपर्स फॉर एयर टू पासेस थ्रू। Next one, all drugs are grouped in the following categories। All drugs are grouped in the following categories like refrigerated drugs, heat sensitive products। रेफ्रिजरेटर के अंदर हम लोग कौन सी मेडिसिन को स्टोर करेंगे जो कि हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हीट से सेंसिटिव हैं और हीट की वजह से डिस्कम्पोज या डिकम्पोज हो जाते हैं। oral solid liquids, injectables, topicals, infusions, inhalations, non-drugs। These are the following categories for the drugs जो कि हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी में लाइक इंजेक्टेबल्स है तो उनको अलग सेपरेट स्टोर करके रखेंगे, टॉपिकल प्रिपरेशंस है तो उनको अलग से स्टोर करके रखेंगे, इन्फ्यूजन प्रिपरेशंस है तो उनको सेपरेटली स्टोर करेंगे, like inhalations, oral solid liquids। These are the categories of drugs। Next one, pharmacist required on the basis of bed strength। एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट कैसे रहती है? ऑन द बेसिस ऑफ बेड स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू बेड स्ट्रेंथ
एक हॉस्पिटल के अंदर कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए। बेड स्ट्रेंथ अप टू 50 बेड्स। अगर कोई भी हॉस्पिटल 50 बेड्स तक का है तो उसके अंदर नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड कितने होंगे, 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड अप टू 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के अंदर। एंड अप टू 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोगों को 5 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे। एंड अप टू 200 बेड्स हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोगों को 8 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होंगे। एंड अप टू 300 bedded hospitals के अंदर number of pharmacists required is 10 and bed strength up to 500 beds, number of pharmacists required is 15. These are the pharmacists required on the basis of bed strength. Next one, disposal of stores. Disposal of stores. First in first out, FIFO method. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मेडिसिन अगर हम लोगों की फार्मेसी में फर्स्ट आई है तो उसका सेल भी क्या होगा, फर्स्ट होगा, वो आउट भी क्या होगी, फर्स्ट होगी। इट्स मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी implies that the products that were stocked first will move out first, and companies should use FIFO method. Companies should use FIFO method if they are selling priceable goods. Companies भी कौन सा मेथड फॉलो करती हैं, FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मेडिसिन कंपनी में फर्स्ट बनती है उनको फर्स्ट सेल करती है कंपनी। एंड कंपनीज सेलिंग प्रोडक्ट्स, companies selling products with relatively short demand cycles such as clothes also may have to pick FIFO to ensure they not stuck with outdated style in inventory. And next one is LIFO. LIFO means last in first out. LIFO means last in first out. जो चीज हम लोगों के पास स्टोर में लास्ट में आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेल करेंगे। इन दिस वेयर हाउस मैनेजमेंट, in this warehouse management, the products which are brought in the last move out the first. LIFO is used in case of products which do not have a shelf life. LIFO के अंदर हम लोग उन LIFO मेथड हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई भी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ नहीं हो कि ये इतने टाइम के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। एंड FIFO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। FIFO means first expiry first out, in which first expiry first out warehouse management, the products are dispatched from the warehouse according to their expiration date. FIFO मेथड के अंदर हम लोग फर्स्टली उन प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करेंगे जो कि जिनकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, नियर होगी। फर्स्ट में जिनकी नियर एक्सपायरी डेट होगी उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। These are the disposable of stories. आप लोगों का LMS काम करना स्टार्ट कर दिया? हेलो, नो सर। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, LMS वर्क नहीं किया? नो सर, नहीं हुआ अभी तक। ओके, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस?